Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 11 for the JNU Environmental Science MSc level exam from the previous year 2019 question paper. I request you to subscribe our channel and contact us for the latest study material in this number. So in this type of exam, as we have discussed in the previous lecture, you will get 75 questions, out of which 50 questions will be of 1 mark and 25 questions will be of 2 mark. The total will be 100. So in the first question they are asking Li2O, lithium oxide, crystallizes with an antifluoride structure where the position of the cation anions are in opposite position to the structure of observed for the fluoride. What are the coordination number of the lithium and oxygen ions? This is the question. Okay. So let us consider one fluoride, that is CaF2. This is considering. So in CaF2 you can see the structure of calcium is at the edges and in the middle of the faces. Okay, while the fluorine is present like here. Okay, so this is the structure of calcium fluoride. Okay, in opposite to that, if you consider the anti-fluoride structure, okay, that is anti-fluoride structure. Okay, in anti-fluoride structure what happens? Just the cation and anions get reversed. Here what happened? Here the anions are inside and the cation are outside, while in this case the anions will be what? Outside, and the cation will be what? Inside. This is the question. So there is a reverse structure. Okay, so in this question if you consider, okay, they are asking what कि लिथियम ऑक्साइड्स का जो क्रिस्टलाइज होता है एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर्स में, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिथियम एंड ऑक्सीजन कितना है. ठीक है, तो इन एन एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर एज वी नो देयर इज एफसीसी पैकिंग. यू शुड रिमेंबर दिस. इन एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर देयर इज एफसीसी पैकिंग ऑफ द एनायंस. ओके, so all the tetrahedral slides, okay, tetrahedral sides में क्या होगा? filled with the cations. okay, ये यहाँ पे filled with the cations हो गया. जो भी tetrahedral sides होंगे वो सारे के सारे आपके filled हो जाएंगे. किससे? cation से filled हो जाएंगे. ठीक है, तो ये सारे आपके टेट्राहेड्रल साइड्स है जो कि आपके कैटायन से फिल्ड आउट हो गए हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दोस what cations will be what? It is 4, and that of anion will be what? It is 8. okay, but if we consider that lithium here and the oxygen here, the coordination number is what? For the lithium is it is 4 and the oxygen it is 8, then the formula will be what? You will cut it out and you will get what? The formula, that is L2O. This is the formula. Okay, so the answer is lithium is 4 coordinated and oxygen is 8 coordinated. Okay, this is the answer for the first question. And the next question they're asking, which of the statement do not applies to H2S? Okay, so let us discuss something about H2S. Okay, before we start. So in case of H2O, okay, that is water, what happens? Hydrogen bonding is there because oxygen has high electronegativity after fluorine. Okay, after fluorine, so the hydrogen atoms from other molecules of the water form the hydrogen bond, okay, with oxygen, resulting in high intermolecular hydrogen bonding. Okay, while in case of H2S, electronegativity of sulfur is low, okay, compared to oxygen, so the hydrogen bonding is negligible in case of H2S. okay, so H2S hydrogen bonding, okay, H2S hydrogen bonding, okay, is less than H2O. okay,
बॉन्डिंग बॉन्डिंग H2O की बॉन्डिंग H2S से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। Therefore at room temperature H2O is liquid and H2S is gas, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू, डी इज एब्सोल्युटली ट्रू। While in human, inhalation of hydrogen sulfide at as a low as 100 to 250 ppm for only few minutes can result in the incoordination, memory and motor dysfunction, ठीक है। तो इन सब का मतलब आपके मेमोरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको सोचने में प्रॉब्लम आ जाएगी, एंड इंसोमिया, इंसोमिया कंडीशंस पे आप चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इंसोमिया कंडीशंस जो होता है इसको ऑल्फैक्टरी पैरालिसिस बोलते हैं, ओके। दिस इज ऑल्फैक्टरी पैरालिसिस, ओके। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली ट्रू। At a lethal concentration, this is the lethal concentration, you should remember this. This is the lethal concentration of hydrogen sulfide, okay. While the formation of H2S will release energy in order to form the bonds, okay, this is bond, this is bond, okay. So it release energy, okay, it release energy means it is exothermic, it is exothermic while forming, exothermic. So endothermic is not the answer, not apply to H2S. This is not the answer, but this is our answer. This is our answer. This is not true, but this is our answer. Okay, you should remember this. This is our answer. The next thing you should remember what the concentration of H2S. Okay, what happens? 1 ppm you can smell very easily. 0 to 10 ppm irritation in the eyes, nose and throats. 2 ppm bronchial constrictions, asthmatic individuals, asthmatic problems हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 to 9.3 ppm increase blood lactate concentration हो जाएगा, डिक्रीज स्केलेटल मसल्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। 10 to 50 ppm में हेडेक हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, नौसिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगा, कफिंग हो जाएगा, डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग हो जाएगा। 150 टू 250 में क्या हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी पैरालिसिस हो जाएगा आपको, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ रखा है ऑल्फैक्टरी पैरालिसिस, ठीक है। और 50 टू 200 में आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन, आई इरिटेशन, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स है कुछ आपके डोजेस के, ठीक है, कुछ डोजेस के सिम्टम्स है। लिथल डोज तो यहाँ तक पहुंच चुका है, बहुत ही ज्यादा लिथल डोज, ठीक है, दिस इज लिथल डोज, ओके। So the answer is already we have discussed, that is the heat of formation is endothermic is the answer, because it is not true for H2S, okay. Next question asks, what is the electronic configuration of Cr3 plus? Very very easy question. You should remember the atomic number till 40, that is 40 means zirconium, okay. Till 40 it is remembering is very easy, you should remember this, okay. It's very common, okay, you should remember this, otherwise you will fail in the exam, because if some questions like this come, you have to remember this, okay. So 10 तक तो सबको याद हो जाता है, लेकिन 40 तक अब याद करें ताकि आपकी इजी रहे एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन उसने पूछा था कि आपका क्रोमियम 3+ का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्रोमियम इज ए काइंड ऑफ ए पॉल्यूटेंट आल्सो, and it is a kind of a star type of element, okay, because it is polluting also. तो polluting agents के आपको याद करने हैं क्या, एटॉमिक नंबर याद करने हैं, ठीक है। क्रोमियम 3 की अगर हम बात करें, ठीक है, क्रोमियम 3, तो अगर हम बात करें आर्गन, आर्गन लिखा है यहाँ पे आर्गन, ठीक है, आर्गन की 18 है, ठीक है। क्रोमियम कहां तक, आर्गन और क्रोमियम के बीच में डिफरेंस कितना है, 6 का, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे लिखा है क्रोमियम 3+, ठीक है, क्रोमियम 3+ लिखा है, मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं है, क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के वजह से +3 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो आपको सिर्फ
निकालना है क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आर्गन तक आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वाली फुलफिल हो चुकी है क्या, आपकी आर्गन तक क्या हो चुकी है, आपके सारे के सारे पी वाले तो फिलअप हो ही चुके हैं, ठीक है। 3ps तक 3p तक आपका सब फिलअप हो चुका है, लेकिन डी की बात करें, अब आते हैं डी ऑर्बिटल में। तो डी ऑर्बिटल के लिए कितना चाहिए भाई, डी तो 10 चाहिए, डी के लिए 10 चाहिए, डी के 5 ऑर्बिटल है तो 10 चाहिए आपको। तो डी 10 तो नहीं होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही होंगे बस, यही बात आती है। D2 तो होने से रहा, 5 तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, 4s2 तो आएगा ही नहीं, जब डी ही फिलअप नहीं हुआ तो 4 कहां से आ जाएगा, पहले डी तो फिलअप होने दो, ठीक है। तो 4s1 तो होने से रहा, ये भी होने से रहा, D3 will be your correct answer, D3 will be correct answer, ओके। तो आर आर्गन 3d3 आपका क्रोमियम 3 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। दिस इज इजी। The next question asks, species composition and abundance in the soil community is influenced by. This is the question. Okay, this is the question. The options are cannibalism only, interguild predation only. ठीक है, cannibalism, interguild predation and tropic level omnivory. ठीक है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो सपोज कंसिडर यू द फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। ये तो भाई चेंज होता नहीं है, इसको क्या लेना देना। If it is not changing, how it should influence the species composition and abundance in the soil? This will not change. Okay, this will not change the soil community composition. Okay, this is not the factor. Okay, we cannot consider this one as a factor, dominant factor. Okay, this is not the factor. Okay, let's discuss about the cannibalism. Okay, cannibalism is the act of consuming another individual of same species. Same species के another individual को खा जाना, ठीक है। जैसे कि अपना रैट को खा गया, ठीक है, एंट को खा गया, ठीक है, टाइगर को खा गया, तो उसी सेम स्पीसीज का, ठीक है, सेम स्पीसीज का खा लेना, which is most common in the ecological interaction in the animal kingdom. Animal kingdom में ये बहुत ही पाया जाता है, more than 1500। okay, so अगर बात करें इंटरगिल्ड की, ठीक है, इंटरगिल्ड प्रेडेशन, तो इंटरगिल्ड प्रेडेशन में क्या होता है, किलिंग समटाइम्स ईटिंग ऑफ ए पोटेंशियल कंपिटिटर, ठीक है। अगर बात कर रहे हैं टाइगर भी खा रहा है अपना किसको, डियर को, एंड गीदड़ भी खा रहा है डियर को, तो टाइगर क्या करेगा, गीदड़ को मार खाएगा, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज द ट्रॉपिक लेवल omnivory, ट्रॉपिक लेवल omnivory। So omnivorous, you know, those are the plant and animal eaters both. Okay, those are the plants and animal eaters both. Okay, लेकिन ट्रॉपिक लेवल ऑफ omnivory in animals that feed at various place within the food web। तो फूड वेब में ये कहीं भी हो सकते हैं omnivory, ठीक है। तो इनका स्पीसीज कंपोजिशन एंड एबंडेंस इन सॉइल कम्युनिटी में क्या लिंक्ड है, बात करें इनकी, ठीक है। तो cannibalism will also produce what, cannibalism will also produce the dead organisms, okay, dead, this is also producing the dead organism, okay, and this is also will be releasing some dead and decaying organisms, okay. So lots of biotic substances will be degraded and come to soil, okay, that will definitely lead to what, growth of microorganism, fungi, bacteria inside the soil, okay. So it will definitely, all the options will be answered, that is cannibalism, interguild predation, tropic level omnivory, except the nitrogen concentration in the atmosphere as given in the options, okay. In Newman position, it is asking represent the most stable conformation of 1,2-diphenylethane, 1,2-diphenyl डाइफिनाइल इथेन की बात की है, 1,2-डाइफिनाइल इथेन की बात की है, और साथ ही साथ न्यूमैन प्रोजेक्शंस की बात की है, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात की है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में होता क्या है भाई, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आप ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात आएगी न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अगर हम बात करें स्टेबल, स्टेबल जो होता है वो मोस्ट स्टैगर्ड वन होता है,
मोस्ट स्टैगर्ड कंपोजिशन जो होता है वो आपका स्टेबल वन होता है। किसमें? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। यू शुड रिमेंबर दिस, इन द न्यूमैन प्रोजेक्शन द स्टैगर्ड स्ट्रक्चर इज द मोस्ट स्टेबल वन। तो स्टैगर्ड कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द व्हाट compound, what is 1,2 diphenyl ethane. So this is the formula, you can see, you can draw this diphenyl ethane. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फिनाइल है, फिनाइल है, हाइड्रोजन है। ये तो स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं ये वाले दो कार्बन को, लेट अस कंसिडर दीज टू कार्बन, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एक कार्बन को पहले पकड़ लो, ठीक है, एक कार्बन को पकड़ लो, ठीक है। उससे अटैच कौन कौन से ग्रुप हैं, ठीक है, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, फिर आपका यहाँ पे फिनाइल अटैच है, ठीक है। इनको 120 डिग्री के एंगल पे आपने रख दिया, ठीक है। 360 कंप्लीट है तो 120 डिग्री के एंगल पे आपने रख दिया, सजा दिया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, एक कार्बन को आप उसके पीछे रखते हो, ठीक है। स्टैगर्ड पोजीशन मतलब एक के ऊपर एक, तो एक आपके उसके पीछे रखते हो, ठीक है। न्यूमैन पोजीशन, स्टैगर्ड नहीं, न्यूमैन पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूमैन पोजीशन में क्या होगा, एक आप एक के पीछे रखोगे, ठीक है। तो वो कार्बन दिखेगा नहीं, वो कार्बन बस पीछे रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वहां पे भी वही है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक आपका फिनाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस डायग्राम को तो बना लिया, ठीक है। ये डायग्राम आपका जस्टिफाइड है, आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला जो हम फिगर बना रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन का, आप देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या, दो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, ठीक है, एक फिनाइल के साथ अटैच कर दिया ऑब्वियसली, ठीक है। पीछे क्या क्या, मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, जो कि मेरा बैक कार्बन की बात चल रही है। बैक कार्बन के पीछे सर्कल आ गया है, ठीक है। सर्कल आने के साथ साथ यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ पे एक फिनाइल निकाल दिया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम एक 120 डिग्री रोटेशन करें, किस चीज का, हम 120 डिग्री रोटेशन करें सभी एलिमेंट्स का, 120 डिग्री रोटेशन मतलब अपने पोजिशन को चेंज करवा दें, रोटेट करवा दें। तो रोटेट करवा देंगे तो क्या होगा कि फिनाइल फिनाइल यहाँ आ जाएगा फिर, ठीक है। फिनाइल फिनाइल यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। फिनाइल फिनाइल यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने 120 डिग्री का रोटेशन किया, फिर से फिनाइल फिनाइल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर हम बात करें किस चीज को, आप कर कैसे रहे हैं, अब पहली बात कर कैसे रहे हैं, अब वो भी नोटिस करना है, ठीक है। तो ये करने का एक ही तरीका है कि आपको ऊपर वाला, ठीक है, जो आपका ये पहला वाला फिगर है, बैक सर्कल वाले की बात नहीं कर रहा हूं, सर्कल को तो रोटेट करना है, ठीक है, सर्कल को तो रोटेट करना है, इसको फिक्स रखो भाई, ठीक है। ये वाला H और ये वाला H और ये वाला फिनाइल ग्रुप को फिक्स रखो, इनको नहीं मूव करवाना। देखो यहाँ पे भी फिक्स ही रखा है, एंड यहाँ पे भी फिक्स ही रखा है मैंने। मैं रोटेट किसको करवा रहा हूँ, मैं रोटेट करवा रहा हूँ बैक साइड जो सर्कल वाला है। तो सर्कल वाले में क्या किया मैंने, पहले फिनाइल को यहाँ पे पहुंचा दिया H पे, ठीक है। तो पहले फिनाइल को यहाँ पे H पे पहुंचा दिया और ये H को इधर रोटेट करवा दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इसको फिक्स रखा, ठीक है, इसको फिक्स रखा मैंने, इसको तो चेंज ही नहीं किया है मैंने, इसको भी फिक्स रखा है यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, फिर 120 डिग्री रोटेशन करवा दिया, ठीक है। तो 120 डिग्री रोटेशन करवाने के बाद क्या हुआ, फिनाइल ग्रुप यहाँ आ गया और एक फिनाइल ग्रुप यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि दो फिनाइल ग्रुप जो हैं ये ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये है गया मोस्ट स्टैगर्ड, ये आपका मोस्ट स्टैगर्ड है। क्यों भाई, क्योंकि जब दो फिनाइल ग्रुप एक साथ रहेंगे वहां पे वन गॉचे इंटरेक्शन होगा, गॉचे इंटरेक्शन मतलब पास पास है, ठीक है। यहाँ पे भी वन गॉचे इंटरेक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी दो फिनाइल ग्रुप पास पास है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप की जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे नो गॉचे इंटरेक्शन, कोई गॉचे इंटरेक्शन है ही नहीं, तो ये मोस्ट स्टैगर्ड है। जहाँ पे गॉचे इंटरेक्शन कम होते हैं वो मोस्ट स्टैगर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है, तो यही आपका स्टेबल होगा, दिस वन विल बी द मोस्ट स्टेबल। आपको करना क्या है, आपको ये वाला जो आपका क्या है, आपका फ्रंट वाला जो कार्बन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको मूव नहीं करवाना है, आपको सर्कल वाले को मूव करवाना है, जो उसके पीछे है, जो उसके पीछे है उसको मूव करवाना है, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सिर्फ इसमें बन रहा है, सिर्फ इसमें बन रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है ये सिर्फ इसी में बन रहा है मूव करवाने के बाद, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। The next question is on match the following type publication with the least year and select the correct answer from the codes given below relevant to India. Okay.
सो यहाँ पे ये सारे के सारे किसी ना किसी बुक ऑथर या किसी ना किसी फेनोमेना से रिलेटेड है या कोई ना कोई कन्वेंशन से रिलेटेड है, बात करें तो, ठीक है, कोई रिपोर्ट है, कन्वेंशन है, इस तरीके से चीजों से रिलेटेड है। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। बात करें आवर कॉमन फीचर की, सबसे पहले ब्रुटलैंड कमीशन, ब्रुटलैंड रिपोर्ट लाया था आवर कॉमन फीचर, वेरी फेमस 1987, वेरी फेमस 1987, ठीक है, 1987, ठीक है। तो याद रखना है 1987 आवर कॉमन फ्यूचर ब्रुटलैंड कमीशन। साइलेंट स्प्रिंग पता ही है, डीडीडी के अगेंस्ट में आया था, ठीक है, रिचर्ड कार्सन, ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग बुक के ऑथर, 1962 27 सितंबर, ठीक है, याद रखना है, ये वेरी इजी, ये आपको याद रखना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है, ये तो फेमस बुक है रिचर्ड कार्सन वाली साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, ये तो याद रखना ही है। एडवर्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ व्हाट, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, जिसमें कि फेमस था डीडीडी, ठीक है। फिर आता है लिमिट टू ग्रोथ 1972 रिपोर्ट, जिसमें कि एक्सपोनेंशियल इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पे बात की गई थी फॉर फाइनाइट सप्लाई ऑफ द रिसोर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट ऑफ ग्रोथ जो था वो 1972 का रिपोर्ट है, ठीक है। और बात करते हैं वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी 1980, फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट ऑन लिविंग कंजर्वेशन प्रोड्यूस्ड विद द इनपुट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अंडर द एक्सपर्ट्स ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये बहुत इजी है, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग इन एनवायरमेंटल साइंस, बुक्स के नाम, ठीक है, फेमस कन्वेंशंस, ठीक है, फेमस रिपोर्ट वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है।